Hello student, I am Rani Dubey, your EVS teacher. Today we are going to study chapter 3rd, name is From Tasting to Digesting. So open your book and yes. Different taste is स्वाद ही स्वाद. डिफरेंट का मतलब अलग अलग तरह के, टेस्टेज माना स्वाद ही स्वाद, बहुत सारे स्वाद यानी कि स्वाद ही स्वाद. झुम्पा ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd. Give me jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan tested Jhumpa. "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli, turmeric? Ivy, your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love the sure imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, "माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो." माँ ने हंसते हुए कहा, "कितना मीठा खाओगी? सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर?" झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा. झुम्पा तपाक से बोली, "तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा." झूलन बोली, "मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ." यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े. झूलन said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sure, lemon," Jhumpa replied quickly. झूलन झुम्पा से बोली, "चलो एक खेल खेलते हैं. मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा." झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाईं. "खट्टा नींबू," झुम्पा फट से बोली. झूलन then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. Jhulan said, "Now close your nose and tell me what this is." Jhumpa was confused. "It is a bit bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful." Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes, and said, "Here it is. Eat." Jhumpa laughed. "Yes, give me more." फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, "पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी." झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया. इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी. तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया. तब झूलन बोली, "अब नाक बंद करके पहचानो." झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई. कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा. "एक चम्मच और खिलाओ," वह बोली. झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली. झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, "खाओ." झुम्पा भी हंसते हुए बोली, "लो, खिलाओ." डिस्कस एंड राइट. डिस्कस करना यानी कि चर्चा करना है, एंड राइट लिखना है और लिखो. झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हियर्ड द वर्ड इमली. "When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their
taste. Do you like only one kind of taste or different ones? Why? Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? If someone were to put a few seeds of soft any seed on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाईं। क्या बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? टर्न द पेज। How did Jhumpa make out the ride? How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? क्लोज योर आइज एंड टेल। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें यदि जीभ पर हम कौन सी जगह पर कौन सा सामान रखें, जब हमको कैसा स्वाद आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, तो ये जीभ के हिस्सों को बताया गया है चित्र में। इससे आपको अंदाज़े लगाने हैं, ये घर पर करके देखना भी है। आप देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा अच्छी तरह से। कुछ खाने की चीज़ों को मुँह के किसी और हिस्से पर रखो, जैसे कि होंठ है, तालू है, जीभ है, उसके नीचे, जीभ के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? तो ये आपको एक्सपेरिमेंट कर करके देखना है। जीभ पे अलग अलग रख के या जीभ के नीचे रखते हैं तो स्वाद आता है क्या? जीभ के आगे के हिस्से पर रखते हैं जब ज़्यादा आता है, या अंदर की साइड रखते हैं तब ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पेज। तो use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो
ताकि वह सूखा हो जाए, क्योंकि हमारी जीभ कैसी रहती है, गीली रहती है कि नहीं रहती है। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है। क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बच्चा देख रहा है, उस पर दाने दाने दिख रहे हैं उसके जबान पे। आप भी अपने जबान को शीशे में देखो, दर्पण में, उस पर दाने दाने दिखाई देते हैं। टेल, बताओ। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? Tomato, onion, sauce, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jhumpa tasted some of the things, she said, see. What do you think she may have eaten? Why don't you make sounds that describe some tastes? From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे कि टमाटर है, प्याज है, सौंफ है, लौंग है, इनका क्या स्वाद बताएंगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। Chew it or chew it well. What's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. चबा कर खाना या चबा कर खाना, दोनों में ये अंतर बताना है। सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो। और ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। Turn the page. Put it in your mouth, chew there 2 to 4 times and swallow it. Did the taste change as you chewed it? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? डिस्कस, चर्चा करो। आपस में बैठ के आप लोग खाते हो, लंच करते हो, तो चर्चा करना चाहिए ऐसे, या घर पे आप बहन भाई हैं साथ में बैठ कर के ऐसे कर सकते हैं। तो चर्चा करो। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? वाई डू यू थिंक दे से दिस? इमेजिन यू आर ईटिंग something hard like a green guava. What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Think, what does the saliva in our mouth do? घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। नेक्स्ट पेज। State from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and
swallow it. In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? ये चित्र दिया हुआ है इस लड़की का। यहाँ पर आपको ऑर्गन्स बनाने, अंग बनाने के पहले खाना कहाँ से जाता है, मुंह से, किस नली में जाता है, ऐसा हमने कई बार पढ़ चुके हैं और चित्र भी देखे हुए हैं अपने। तो आपको अपने हिसाब से बनाना है और अपने फ्रेंड का चित्र भी देखना है कि आप दोनों का एक जैसा लगता है चित्र या कहाँ कहाँ खाना जाता है। ऐसे ऑर्गन आपको बनाने। डिस्कस, चर्चा करो। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry I could eat an elephant. How do you come to know that you are hungry? Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? नेक्स्ट पे नीतू was given a glucose drip. Neetu was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. What was a glucose drip? Doctor Auntie explained, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें ज़रा जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। टॉक एंड डिस्कस, बताओ और चर्चा करो। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास
You made a solution of sugar and salt. Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ देखा? नेक्स्ट पे, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। हैव यू or anyone in your family been given a glucose dip? When and why? Tell the class about it. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? Look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose dip being given? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? चित्र देखकर बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया होगा? मार्टिन्स विंडो, कहानी खिड़की वाले पेट की। Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. ये एक पोएम टाइप की दी है कहानी मार्टिन के पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे वह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। ये हमारा आधा चैप्टर हो गया है। आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, आप पढ़ें। ये अच्छी एक पोएम भी है, ठीक है। आपको पढ़ते रहना है। सो थैंक यू।